server. Namaskar. Myself Nanda Botra, Career Guidance Cell Coordinator of Vanita Vishram Women's College of Commerce, Surat, and the host of today's webinar. On behalf of our college, I warmly welcome all our aspiring professionals and students to the national webinar on career prospects in the banking sector. We are glad to have almost 600 participants from across the country. It is our pleasure to have with us Dr. Jatin Nayak, who is a distinguished banker and an expert trainer and motivator. His passion and acquaintance in the banking sector have compelled us to invite him as the resource person for today's webinar. I also welcome our principal, Dr. Abhilasha Agarwal, the driving force behind this webinar. It is because of her foresightedness that we have organized today's webinar on this theme. In the current situation, aspiring professionals and students are quite anxious and uncertain about their careers. This webinar is our sincere attempt to guide them about banking, which is a niche career for the professional aspirants. For the beginners, it is the first step towards understanding the global economy, discovering the challenges of the marketplace, and identifying a career which provides them with tremendous opportunities. So, friends, let's utilize this time to sharpen our edge and add to our knowledge under the able guidance of Dr. Jatin Nayak to be ready for this sector. Now, I request Dr. Abhilasha Agarwal, lady with vision and commitment, to give her welcome address for this webinar. Thank you, Nanda ma'am. Good morning, one and all. I feel extremely honored to welcome you all to our 6th national webinar titled as Career Prospects in Banking Sector, planned by Career Guidance Cell of our college. It's a moment of great delight to share this morning with a galaxy of eminent personalities, academicians, and students. It's my pleasure to welcome our today's speaker of this session, Dr. Jatin Nayak, who is the General Manager in Surat People's Cooperative Bank Limited. Welcome, sir. At this juncture, I am grateful to our Chairman, Dr. P.K. Desai, and other members of the Vanita Vishram management for their unconditional support to organize such event. I am glad to announce that more than 600 participants have responded to this webinar from across the country. The sole purpose of organizing this webinar is to provide guidance regarding career opportunities in banking sector, especially to the students doing graduation, as to make a career in banking sector is a dream of many graduates. Number of international, public and private banks set up in the country have opened up opportunities for those who aspire to become future bankers. We hope this webinar will be grateful or helpful to enhance your knowledge about career prospects in banking sector. Once again, I welcome you all and wish you all the best for your future endeavors. Have a good day. Thank you. Thank you, madam. Now let me brief about our resource person, Dr. Jatin Nayak, who holds the prestigious position of being the General Manager of Surat People's Cooperative Bank Limited, the largest multi-state scheduled cooperative bank of South Gujarat. Besides being an eminent banker, he is a professional trainer and an expert motivator. Academic degrees to his credit are MCom, LLB, MBA Banking and Finance, CAIIB, GDCNA, and PhD. In fact, he is the only doctorate employee in the whole urban banks of Gujarat state. He has also received cash prizes, awards, and medals for the same from prestigious institutions. He has received more than 35 shields and over 100 certificates for various activities. He is also appointed as a fellow member of Indian Institute of Banking and Finance, Mumbai. He is a visiting faculty member at, at more than 46 institutions for the subjects related to banking. This noble man has donated blood 40 times. Now, I invite Dr. Jatin Nayak for his much awaited session.
Good morning. Should I share my screen? Am I audible? Hello. Yes, sir, you are audible. You Okay. Vanita Vishram Women's College of Commerce, Surat, organizing 6th national webinar on career prospect in banking sector. I really thankful to Dr. Pradeep Desai, Chairman, Vanita Vishram, webinar chairperson, Dr. Abhilasha Agrawal, organizing secretary, Dr. Krishna Desai, webinar coordinator, Professor Nanda Bothra, and technical support team, Ms. Krina Desai and Mrs. Bhumi Desai. आज बात करने वाले हैं, थोड़ी मैं मेरी बात कर लूंगा, म्यूट कर दो आप अपने आप को। बाकी जो स्टूडेंट हैं इनके लिए जो भी बात करनी है, कैसे क्रैक करनी है एग्जाम, बैंकिंग में कैसे जाना है, बहुत अच्छी जॉब है, कौन से पेपर क्लिक कैसे करने हैं, क्या पूछा जा सकता है, तो ये आज का टॉपिक रहेगा मेरा। एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कंक्लूड माय speech within stipulated time. Now I go with my PPT. Surat People's Bank, which is rightly said by Nanda Bothra, कि साउथ गुजरात की बहुत बड़ी बैंक है, नियरली 8,000 करोड़ का बिजनेस है बैंक का. I have joined this bank as a simply clerical level by giving IBPS exam. Now today the topic is career prospect in banking sector. आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, then you have to fulfill some skill required to be in banking sector. When we do something we like, then it definitely works in our favor. Candidate who have following skill should go for the banking sector. Check out the interesting skill and start if you have them. पहले हम अपने पास क्या है वो देख लें, फिर जाने की सोचे बैंकिंग करियर में. Skill required to be in banking sector are customer dealing, people with patience, analytic skill, good with number and accounting. Now we take first customer dealing. Banking sector job are one of the customer dealing job which include acceptance of people from various leaves. Someone who has the skill of managing people and encouraging terms of people to work well together might make a good bank manager. बैंक एम्प्लॉई को काम करना है कस्टमर के साथ, बट समटाइम्स वी रीड इन न्यूज़पेपर की misbehavior made by the bank employee or vice versa. So while you're dealing with any people, you have to remember one thing, that he or she carrying feelings. So bank employee generally deal with the feelings of the people. Second one is people with patience. People who have patience while dealing with customer will like banking sector job. A bank employee needs to calm down the anger and sometimes has to deal with customer who are slow in adapting to the recent technological changes in the banking world. People with good numbers and accounting. People who enjoy playing with numbers and responsibly handle the accounts and data will enjoy banking jobs. यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि nowadays all banks are running on core banking solution. So पहले क्या था कि हमारा जो अकाउंट नंबर रहता था वो 3 या 4
फिगर का होता था. ड्यू टू CBS कोर बैंकिंग सोल्यूशन आप देखिए कि आपके बैंक का अकाउंट नंबर भी 12 नंबर, 13 नंबर, 14, 15 तक चला गया है. सो गुड नंबर एंड अकाउंटिंग, अगर आप नंबर के साथ न्यूमेरिकल जाते हैं तो अच्छा रहता है आपका बैंकिंग में आना. Fourth one is good analytical skill also. People with the interest in analytics will surely be good at banking career, which has posts like economic analyst. If you are good at analytic skill, then you will like this job. Many finance experts say that in the upcoming years, banking sector will definitely grow. There are more chances of recruiting young candidates to make your career in banking sector. There are various posts which you can apply for. But the problem is with in present scenario with the youth is we made up our mind like this. I don't know when advertisement come and where we have to get enroll. I am not competent to crack competitive exam. Such exam are very tough. Tuition classes fees are very high. And most common thing, I have no time. देखिए, you have to fix your goal first. Many times when I visited many colleges where students busy with their mobile. So don't do this. First, you create your future by investing today. Now come to the point. How we qualify ourselves for this sector. अब देखिए, आज जो भी मैं कहूंगा ये मेरा एक्सपीरियंस है. Despite of center first in BCom, highest mark in university in PG level, I was jobless. At night I was crying also. क्यों? Despite of qualification, despite of bright qualification, मेरे पास जॉब नहीं था. फिर सोचा कि कहां पे प्रॉब्लम हुई है. I assess myself also. फिर देखा कि सिर्फ पढ़ना और डिग्री लेना एक बात है और दूसरी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके आगे निकलना. पहले when I joined this bank at in the year 1988 as a simply clerical level, बहुत सारी एग्जाम मैंने दी हैं, बहुत बार फेल हो चुका हूं, मगर फिर भी डटा रहा और ये जॉब मैंने निकाल ही ली. So I request my all student today, try to get minimum 60% in graduation. Minimum, I say minimum. अगर इससे ज्यादा ला सकते हैं, वेलकम. ऐसा क्यों कहा मैंने कि 60% आपके होने चाहिए. Sometimes what happen? Some banks advertising their vacancies like this, we require first class graduate. अभी आप देखिए कि आपके 58% हैं, 59% हैं, straight away you are rejected by that bank. क्यों उनको फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट चाहिए. मगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास कैसे निकलेगा, 60% कैसे आएंगे. Don't think like this. Try to get minimum 60%. मैं मान के चलता हूं कि कंपलसरी अकाउंट है जो एसवाई में है, थोड़ा टफ है. एसवाई में मेरे भी कम निकले थे स्कोरिंग, मगर फिर भी try to get minimum 60% in graduation. First off, you have to write down this. Try to get minimum 60%. So you have to become a first class graduate. After graduation, you have a lot of opportunities. GPSC, Staff Selection Commission called SSC, Railway Recruitment, SBI, IBPS, Cooperative Bank, RBI Assistant, LIC, General Insurance, Union Public Service Commission.
Among this, we are focusing only today in banking sector. After 60%, you have to complete one course of, invariably you have to complete one course from computer section, that is called CCC, course on computer concept. CCC, आप देखिए कि गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं अबव 50 इयर्स एम्प्लॉई, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी बना दिया है कि यू हैव टू क्लियर विद इन 55 इयर्स CCC course. From second year, try to spend 1 hour practicing for IBPS exam. 1 hour practicing. 1 घंटा दीजिए अपने आप को, अपने आप के फ्यूचर के लिए. From second year, clear DBF, that is called Diploma in Banking and Finance from Indian Institute of Banking and Finance. ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, देन यू राइट योर CV. आपका CV सिर्फ आधे पेज का हो सकता है. Nowadays, what required by the institution? Versatility. आपके पास बहुत सारा नॉलेज चाहिए. We have to know something from everything. So, to start with your graduation, and before graduation, you have to clear this course invariably. ये क्यों कह रहा हूं मैं? इसका एक एडवांटेज है. Indian Institute of Banking and Finance is exclusively for banking fraternity. बैंक में जो काम करते हैं, इनके लिए ये इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है और वो एग्जाम ले रहा है called JAIIB, CAIIB and other. मगर उनके लिए जो बैंक में काम करते हैं. अभी हमारे पास तो जॉब नहीं है, वी आर स्टडिंग अवर कॉलेज. तो क्या करते हैं कि पहले आप एनरोल कीजिए इंस्टीट्यूट में और डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का एग्जाम दीजिए. टू स्टार्ट विथ SY, BCom और सेकंड ईयर ऑफ एनी फैकल्टीज, एनी स्ट्रीम. अगर आपने DBF कर लिया और IBPS क्लियर होने के बाद किसी बैंक में आपको जॉब मिलती है, तो यू हैव टू इंटीमेट ओनली टू IIBF कि नाउ आई एम एम्प्लॉय ऑफ दिस बैंक and I have cleared DBF. So you have to write down one application to IIBF. IIBF check your degree, that is you have DBF, and on that ground IIBF will provide you straight away JAIIB degree in lieu of DBF. Junior Associate of Indian Institute of Bankers, that is called JAIIB. And कोई भी काम करने वाला हो बैंक में, उनके पास JAIIB और बाद में CAIIB, सर्टिफाइड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की डिग्री होनी चाहिए. प्रमोशन के लिए ये डिग्री बहुत ही मायने रखती है बैंकिंग सेक्टर में. सो अभी से आपके पास अगर DBF है, आपके पास, आप ग्रेजुएशन हो गए विथ 60% विथ फर्स्ट क्लास, आपके पास CCC का कंप्यूटर कोर्स आपने किया है, अभी आप देखिए कि नाउ यू हैव टू डेकोरेट योर CV. आपका जो CV बनता है वो डेकोरेटिव होना चाहिए. अगर आप ये नहीं करते, DBF करो नहीं करो, इट इज अप टू यू. CCC करो नहीं करो, इट इज अप टू यू. ग्रेजुएशन तो आप हो ही जाएंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं. अभी ग्रेजुएशन होने के बाद अगर आपके पास ये 2 डिग्री नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि जिनके पास ये डिग्री है, तो वो आपसे डेफिनेटली आगे निकल जाएंगे. सो ट्राई टू क्लियर DBF, Diploma in Banking and Finance from IIBF, before you complete your 3rd year. Join apprenticeship in any bank to get field knowledge. Nowadays, bank require apprenticeship. That is a law in our India. So any bank working in India has to absorb apprentice
they provide you stipend. Surat People's Bank also hire apprentice for 1 year training, give certificate, and give monthly 9,000 rupees stipend. So it is a benefit to you. Here you can see school, studies, professions, skill, performance, career, motivation, and then goal. But आपको अगर जाना है किसी भी फील्ड में, जो बनना है फ्यूचर में, इसी का अभी से आपके पास गोल होना चाहिए. मुझे पता है, when I joined my PG after graduation at Valsad NH Commerce College in the year 1985, late principal Dr. Dalia once asked me, Mr. Nayak, why you joined PG? And at that time, my answer was, sir, I have clear graduation. So ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं वो आपको पता होना चाहिए. नहीं तो हर साल में बहुत सारे ग्रेजुएट, नंबर्स ऑफ ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से निकलते हैं. आप देखिए कि nowadays it is difficult to fail. 4 या 5 सब्जेक्ट में आपको एटीकेटी मिलती है, मगर एटीकेटी मत लीजिए. फोकस ऑन योर स्टडी. आफ्टर DBF, graduation with 60% completion of CCC course, you absorb yourself in any bank as an apprentice, because work plus training plus skill आपके पास आ ही जाती है. Spend half an hour in reading current affairs. जब से मोबाइल है, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि हमारा रीडिंग कम हो गया है. अभी देखिए कि बहुत सारे लंबे लंबे जब मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, हम ज्यादातर पूरा मैसेज नहीं पढ़ते हैं. सो स्पेंड हाफ एन आवर इन रीडिंग करंट अफेयर्स. क्यों? करंट अफेयर्स का भी एक पेपर होता है IBPS में. पहले हम जीके की बात करते हैं, जनरल नॉलेज की बात. नाउ जनरल नॉलेज इज आउटडेटेड. जनरल अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड. क्यों चूज करनी है हमें बैंकिंग सेक्टर की जॉब? बैंकिंग सेक्टर ऑफर्स ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स compared to other jobs. The demand for bank job has been increased. Nowadays, most of the graduates prefer banking sector job over other popular choices. So to minimize the confusion, below we have provided some advantages. First one is security. आप देखिए कि मार्च से शुरू हो रहा हमारा लॉकडाउन आज जुलाई एंडिंग पे है. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बंद हो चुके हैं. जॉब सिक्योरिटी नहीं थी वहां पे. बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है. जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं, वो फी की वजह से उनके प्रोफेसर्स, सेल्फ फाइनेंस स्कूल के जो टीचर हैं, उनके सैलरी नहीं हो पा रहे हैं. सो सिक्योरिटी. एट द सेम टाइम एज अ बैंकर we are getting regular salary and regular perk also. तो सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है हमारे कैरियर में. The most important advantage of a banking career is that it provides job security. You won't get fired so easily only if you do something illegal or against the rules. Salary. अभी देखिए कि day before yesterday IBS tie up with government and rise, they decided to give rise to the bank employee 15%. 15% का राइज मिलने जा रहा है एट प्रेजेंट बैंक एम्प्लॉय को. मैंने बात कही थी कि जो अदर देन बैंकिंग सेक्टर है, वहां से लोगों को निकाल दिया गया है. यहाँ पे सैलरी राइज होने की बात की गई है. The tie-up with government, Indian Bank Association has tie-up with government and decided to give 15% rising in the existing salary of bank employee. So बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी है.
also get other perks like residence, transportation, costing, etc. बहुत अच्छी हॉलीडे का भी मिलता है हमें, हॉलीडे मिलती है, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे नाउअडेज हॉलीडे है। अगर आप रिजर्व बैंक में जॉब अगर आपकी है तो रिजर्व बैंक 5 डे वीक चलती है आज भी। तो ये हॉलीडे जो भी है नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सभी हॉलीडे के दिन बैंक बंद रहती है, सो हमें छुट्टी भी मिलती है। बैंक जॉब ऑफर लर्निंग एनवायरनमेंट अबाउट न्यू पॉलिसीज, loan credit scheme, as there are a wide variety of loan advances credit scheme offered to individual। आप देखिए कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रिस्पेक्टेड श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, कि डिक्लेयर किया है टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द बिजनेस, दैट इज MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आउट ऑफ दैट 20 लाख करोड़ पैकेज, 80% पैकेज बिलोंग टू बैंकिंग सेक्टर, यानी बैंक को लोन देने के लिए बोला गया है। हार्डली 20% अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत 20% रखा गया है। तो आप देखिए कि आपको कुछ न कुछ जो क्रेडिट स्कीम होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलती रहती है, वो सब कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। That is pros and cons of every coin has two sides. The cons of having a banking sector job, मगर वो बहुत मायने नहीं रखता as per my opinion। मगर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्क प्रेशर भी होता है बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर जॉब expect you to go out of your way to accomplish more target than you can. It is one of the hectic workplace as there is a pressure to achieve target। अभी देखिए कि टारगेट सभी सेक्टर में आपको मिलेंगे, मगर टारगेट अचीव करने का भी एक और मजा है। तो वर्क प्रेशर, अगर आप मानते हैं कि वर्क प्रेशर है तो आपको लगेगा कि हाँ है, मगर आप अगर मानते हैं कि ये आपके लिए चैलेंज है तो वर्क प्रेशर आपको नहीं लगेगा। टेक्नोलॉजी, नाउअडेज आप देखिए कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। हम कुछ भी सोचते हैं आज और कुछ लेने के लिए भी जाते हैं, दूसरे दिन बदल जाती है टेक्नोलॉजी। और लॉकडाउन के समय, ये पैंडेमिक के टाइम में तो बहुत सारी ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी है वो वर्क कर रही है। देखिए आप, हम आज भी गूगल मीट से आपसे बात कर रहे हैं, दैट इज अ टेक्नोलॉजी। पोस्टिंग इन रिमोट लोकेशन, एज पर द RBI बैंकिंग लाइसेंस गाइडलाइन, न्यू पॉलिसी मैंडेट अ बैंक टू एक्सपांड इट्स ब्रांचेस इन द रिमोट rural area, hence many bank employee are getting transferred to rural location। मगर जो रूरल से बिलोंग करते हैं इनके लिए तो ये एडवांटेज माना जाता है। severe manpower shortage, industry struggling quality people, banking sector is growing in India, more than 1.5 lakh job in private banks every year, 40,000 new vacancies in government banks। If you are a graduate and looking for a good bank job, then following are the exam you should definitely opt for. IBPS clerk, Institute of Banking Personnel Selection, called IBPS. This is one of the most popular banking exam in India, offering the post of clerk in participating banks। IBPS PO, probationary officer, आप डायरेक्ट ऑफिसर्स भी बन सकते हैं बैंक में। SBI IBPS जो एग्जाम लेती है बैंक की, वो जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी जो गवर्नमेंट बैंक है उनकी IBPS एग्जाम लेती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, वो अपना खुद रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशन चलाती है। तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी IBPS से नहीं जाती, वो खुद ऑर्गेनाइज करती है अपनी एग्जाम। और लास्ट में है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये 3 जो पिलर मैंने बताए हैं, IBPS फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, IBPS क्लर्क एंड PO फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, जनरल इंश्योरेंस है, LIC है, RBI ग्रेड B, RBI असिस्टेंट मैनेजर,
SBI क्लर्क, SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, तो ये सब एग्जाम है। फॉर बैंकिंग सेक्टर हम जो बात करने वाले हैं आज वो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। Candidate should be appearing completed his or graduation from any recognized university in India. Candidate should be between 20 to 28 years of age. यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले रही हैं उनका एज क्राइटेरिया रखा गया है इंडिया में, और वो अपर एज है 28 इयर्स। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि you have to absorb yourself within 25 years of age. 28 साल हैं, 28 साल तक हम एब्सॉर्ब हो सकते हैं, मगर फिर भी मैं ऐसा मान के चलता हूं कि टू स्टार्ट विद आफ्टर ग्रेजुएशन 20 इयर्स, 5 साल आपके पास हैं। ये 5 साल में यू हैव टू गेट योरसेल्फ, कहीं पे भी आप एब्सॉर्ब कर लीजिए अपने आप को। 3 साल का आप एक मोरेटोरियम जैसा रखिए। अगर नहीं हो पाता है एट द एज ऑफ 25, देन यू गो विद 26, 27 एंड 28 इयर्स। अपर लिमिट है, मगर अपर लिमिट में हमें अपना कट ऑफ रखना है 25। तो देयर इज अ रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, मगर ज्यादातर हम बात करेंगे जनरल कोटा की। तो गवर्नमेंट रूल्स हैं, तो SC ST और जो भी फिजिकल हैंडीकैप हैं उनके लिए अलग से कोटा निकलते हैं, मगर जनरली हम जनरल कोटे से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए 28 इयर्स एज है। कैंडिडेट शुड आल्सो हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो मैंने आपको बताया कि CCC नहीं किया है तो कर लीजिए आप। अदर देन दिस बैंक देयर इज अ प्राइवेट सेक्टर आल्सो। सो प्राइवेट सेक्टर की जो बैंकें हैं, HDFC है, ICICI है, फेडरल है, एक्सिस है, यस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बंधन बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस है, उज्जीवन है, ये सब बैंक भी ऑफर करती है कैंडिडेट को। मगर ज्यादातर जो लोगों का सिलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब का होता है, क्योंकि वहां पे सैलरी अच्छी है, पर्क अच्छे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक की भी जॉब अच्छी है, मगर यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम, और प्रोबेशन भी आपका लंबा वहां पे हो सकता है। लिस्ट ऑफ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक हमें नहीं जाना है वहां पे। बैंक्स लाइक IBPS and SBI conducting examination for graduate aspirant for various posts. The probationary officer is one of the posts which is desired by lakhs of graduate. Probationary ऑफिसर्स की पोस्ट थोड़ी एग्जाम जो उनकी निकलती है वो डिफिकल्ट ज्यादा है, मगर स्टार्टिंग स्केल जो होता है PO का वो SBI में अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज से होता है। सो अगर आप टैलेंटेड हैं, आपने PO क्लियर कर दिया, इंटरव्यू क्लियर कर दिया, अगर आपको जॉब मिलती है तो यू स्टार्ट योर कैरियर विद 70,000 से आपका स्टार्टिंग हो सकता है। अदरवाइज 30,000 तक का सैलरी अभी क्लरिकल लेवल में गवर्नमेंट बैंक में है। IBPS conduct examination for the nationalized bank in India. If candidate want to make the career in banking sector, then they have to appear for the exam conducted by IBPS. IBPS एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या है वो देखना पड़ेगा हमें। सो मैंने बता दिया कि ग्रेजुएशन विद 60%, CCC, DBF, अप्रेंटिसशिप। नाउ वी फोकस टू IBPS एग्जाम। पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, important to understand for the candidate who are appearing in the IBPS exam. The exam syllabus is basically consisting of aptitude, reasoning, general knowledge question including banking, GK and computer related question. The exam is to be objective type, having one question with 5 responses. So क्या होता है, ऑनलाइन होने वाली ये एग्जाम में 5 ऑब्जेक्टिव आंसर दिए जाते हैं
That is a time consuming exam. So within targeted time, you have to attend all questions and prove yourself. Negative marks will be given for wrong answer, that is 0.25. So अगर आपने गलत कर दिए तो आपका 1 मार्क्स वहां से निकल जाएगा. दोनों में आप दे सकते हैं, हिंदी है और इंग्लिश है, मगर मैं मान के चलता हूं यू हैव टू गो विथ इंग्लिश पेपर. सो प्रीलिम एग्जाम, आईबीपीएस एग्जाम के 2 सेक्शन हैं. पहला है प्रीलिम और दूसरा है मेंस. प्रीलिम 1 घंटे की कंपोजिट टाइम है, 60 मिनट्स. आप देखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर होता है, रीजनिंग एबिलिटी का पेपर होता है. इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स. ये तीनों का कुल मिला के आपको मिलेगा 60 मिनट्स विथ नेगेटिव मार्किंग. सो आपको ये तीनों पेपर क्लियर करने हैं. वो कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो आईबीपीएस बाद में डिसाइड करती है. अगर आपने ये प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाइड कर ली, then you are eligible to go for main exam. मेन एग्जाम का पैटर्न देखिए, वो तीनों पेपर यहां पे आपको दिखेंगे, मगर थोड़ा आप यहां पे देख लीजिए कि सेक्शन वाइज टाइमिंग अलॉट किया गया है. यहां पे पहले हमने देखा कि कंपोजिट टाइमिंग था 1 आवर. अभी हमने देखा कि ईच सेक्शन कैरिंग 35 मिनट्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन, quantitative aptitude 50, 45 minutes, reasoning ability and computer aptitude 50, total marks 60 हैं और 45 मिनट्स हैं. और जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स विद इन 35 मिनट्स. अगर आपने प्रीलिम क्लियर किया और मेंस में आए, मेंस क्लियर किया, सो यू हैव टू वेट. आपका इंटरव्यू यहां पे नहीं होने वाला है. पहले क्या था कि आईबीपीएस एक ही एग्जाम कंडक्ट करती थी और दूसरा आपको इंटरव्यू देना पड़ता था. बाद में नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया कि क्लरिकल लेवल के लिए इंटरव्यू नहीं रखा जाएगा. तो आईबीपीएस ने क्या किया कि एग्जाम 2 पार्ट कर दिए एग्जाम के. पहला हो गया प्रीलिम, दूसरा हो गया मेंस. अगर दोनों आपने क्लियर किया है, सो यू हैव टू वेट फॉर योर अपॉइंटमेंट लेटर ओनली. एसबीआई में भी देखिए कि एसबीआई का जो एग्जाम है वो एसबीआई खुद करती है, आईबीपीएस नहीं करती है. एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम, वहां पे आप देखिए कि यहाँ पे थोड़ा बदलाव दिख रहा है हमें कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स. यहाँ पे सेक्शन वाइज क्लरिकल लिए भी जो हमने कंपोजिट देखा था आईबीपीएस में, वो यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे भी एसबीआई में भी 1 ही घंटा है, मगर कट ऑफ है 20 मिनट्स का. और बाद में मेंस में देखिए कि वो भी 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं और टोटल ड्यूरेशन जो होता है 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का. तीसरा है आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न. यहां पे आप देखिए कि आईबीपीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है वहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई स्पेसिफिक नहीं दिया जाता. वहां पे रखा जाता है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, सेम एज इन एसबीआई. मगर आरबीआई में आप देखिए कि एटलीस्ट अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ अ मिनिमम 50% मार्क्स in the aggregate and the knowledge of word processing on computer PC. तो आरबीआई ने 50% रखा है. अभी आप देखिए कि 50% यहाँ पे है, मैंने आपको बताया है 60%. बाकी तो आप देखिए कि रीजनिंग है, न्यूमेरिकल है, वो सेक्शन वाइज है. लुक जस्ट लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी पैटर्न है मेंस का, आरबीआई का भी, वो 200 मार्क्स 2 क्वेश्चन 135 मिनट से ओनली. हाँ, आरबीआई में तो आप देख लीजिए ये आरबीआई
RBI का है, और 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग है वो तो सभी एग्जाम में कॉमन है। तीसरा एक सेक्टर है, यानी हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, फॉरेन बैंक है, और चौथा है कोऑपरेटिव सेक्टर। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक रखा है मेरी बैंक का नाम, सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। बहुत सारी ये हमारे जैसी बैंक है, मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड जो बैंक हैं, तो हम भी क्लरिकल लेवल के लिए जाते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, मगर हमारा क्राइटेरिया है वी रिक्वायर फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट। तो आप देखिए कि ये सेक्टर बहुत ही स्मॉल सेक्टर है। पूरे बैंकिंग सेक्टर में कोऑपरेटिव सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हार्डली 3 to 4% है, मगर फिर भी ये सेक्टर जो रिक्रूटमेंट कर रहा है एम्प्लॉय की, वो टैलेंटेड और 60% से ज्यादा लाने वाले कैंडिडेट के लिए हैं। तो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ऑफ सच बैंक, सूरत पीपल्स में रिक्रूटमेंट के लिए भी IBPS रखी है और प्रमोशन के लिए भी IBPS रखी है। When I started my journey as a clerical level, thereafter I give IBPS for officer, IBPS for manager, IBPS for senior manager, IBPS for chief manager, IBPS for assistant general manager। यहां तक हमारी बैंक में यानी सूरत पीपल्स में पूरा जो सिस्टम है वो वेरी ट्रांसपेरेंट, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक में इन्फ्लुएंस ज्यादा चलती है। सो रेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक की बात मैं नहीं करूंगा। जो बहुत अच्छी बैंक है, बहुत ग्रो कर चुकी है, जैसे मैंने बताया कि 8,000 करोड़ के हमारा जो बिजनेस है, वो बहुत सारी बैंक हमारे भी से भी ज्यादा कोऑपरेटिव जो करती हैं बिजनेस, उनका भी ऐसा है कि टैलेंटेड एम्प्लॉय रिक्वायर। सो हमने भी 60% के लिए रखा है। सो IBPS पब्लिक सेक्टर के लिए रखती है ग्रेजुएट ऑफ एनी डिसिप्लिन इररिस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज। RBI ने रखा है 50%, और हमारे जैसी कोऑपरेटिव बैंक है वो रखती है मिनिमम 60%। अभी कैसे करनी है? स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय नोइंग इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईच पेपर। मैंने तो बता दिया कि रीजनिंग है, क्लरिकल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, मगर कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी आपको मैं आज बोल दूंगा आज कि रीजनिंग का जो सेक्शन होता है, दिस सेक्शन इज वेरी स्कोरिंग। द जनरल क्वेश्चन आस्क आर comprehensive type reasoning in which a paragraph is given and some questions are asked related to it. You should be able to solve the questions correctly with a lot of concentration. The main topics to focus are Venn diagrams, sitting arrangement, comprehension and non-verbal reasoning. दूसरा है इंग्लिश. A proper time management is required for English preparation, as the comprehension is the exam can very lengthy. The topic that require major focus including error detection, comprehension and close test and fill in the blanks. तीसरा है quantitative aptitude. Candidate have to manage their time proper as the question are time taking. The best thing to do is to solve question according to their merit. You must focus on all the questions that are related to data interpretation and simplification. General awareness. Remain up to date with the news, fact and current affairs relating to banking and finance sector. Generally, current affairs of national and international news are asked. There might be some questions relating to banking, marketing, technology, sports and culture. यहाँ पे सुशांत सिंह का जो कल दिल बेचारा का इंट्रोड्यूस हुआ वो नहीं पूछा जाएगा. The best way to improve your general knowledge is to read a newspaper and magazine relating to current affairs. Computer knowledge. Candidate can score very easily in this section as the syllabus is not very vast. This part cover basic of computer, organization and generation of computer, local area network, wide area network, modem,
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, general operations done on computer. Get good books. क्या करना चाहिए आपको? The key to crack the IBPS clerk exam is to know and understand your topic clearly. To do this, you will require a good set of books. After you are done studying with various main and reference book, you should definitely go for mock test. It helps to know your weaknesses and your time management. In last couple of days, it is your best hope for doing well in the IBPS clerk exam. The best thing to do would be to give online mock test. You can also solve previous year's questions paper for better understanding of the quality of questions asked. Timing is everything. ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो चलती है स्पीड और एक्यूरेसी पे विथ टाइम मैनेजमेंट. Time management is the key in anything, especially exam like this. Firstly, just don't pressurize yourself too much before the exam. Even start, or else that pressure of finishing everything in time is what will hurt you. Instead, be relaxed, stay focused, and to be honest, just don't think much at all. Attempt those sections that you are good at first, and the ones you think might take time, keep for later. This must be decided before the exam start. For instance, if English and computer is your forte, very well, attempt that first. If you feel quant will eat up big chunk of your mind time, then keep it for later. There are 50 questions in each section, so the section you are good at, try to complete in 30-40 minutes. So you can have the rest of the time for the ones that take time. This way, you are not running the risk of keeping things that you can score well for last. Their accuracy matter to avoid negative marks. You know there are 0.25 marks deduct for every wrong answer. So accuracy matters too. If you can answer 25 correct question and it takes more time and you have to leave the other 25. हम क्या करते हैं जब बैठते हैं एग्जाम में, स्टार्ट करते हैं तो प्रेशराइज तो हो ही जाते हैं, मगर जब स्टार्ट करते हैं तो देखते नहीं हैं. जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ट्राई टू गेट मिनिमम 50% मार्क्स. 50%. अगर आपका 50 क्वेश्चंस का कोई सेक्शन है तो आप देखिए कि 25 से ज्यादा कितना कर सकते हैं विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. हम क्या करते हैं, पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, अगर 50 क्वेश्चन है उसमें तो 50 तक रुकते नहीं हैं हम. इसका मतलब क्या होता है कि जो दूसरे जो सेक्शन होते हैं उनके क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हम, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि टाइम कम पड़ गया. टाइम कम नहीं, हमारा स्पीड कम है. यू आर डाउटफुल, अभी देखिएगा फॉर विच यू आर डाउटफुल ऑफ, very well, do it. Correct answer are valued more. For example, 20-25 correct answer in general awareness can also lend you some grace mark. So firstly, complete the exam with stuff you know well and attempt the question that you know the correct answer. यहाँ पे बोस्टिंग नहीं चलेगा आपका. यहाँ पे आपकी कोई यूनिवर्सिटी की एग्जाम नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है. यूनिवर्सिटी एग्जाम में जनरली हम क्या करते हैं कि इररिलेवेंट भी लिख देते हैं 2 पेज, और एग्जामिनर भी क्या करता है, हाँ 2 पेज लिखा है ना, उनको दे दो 5 मार्क. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. द अगेंस्ट boils down to your practice to the lead up to the exam. If you have practiced well, you would be comfortable. In case you think that you are not that well prepared, still do not be nervous. Nervousness in IBPS clerk exam, or for that matter any exam, is the biggest enemy. Just focus on what is ahead and manage time better and you will be okay. What to focus on at the last minute? हमने बहुत सारा प्रिपरेशन किया,
मैंने कई स्टूडेंट को देखा है जब बेल रैंक करती है एग्जामिनेशन के लिए, फिर भी वो लोग अपनी किताब लेके पढ़ते रहते हैं. So what we have to do at the last minute, it is very easy to run with the so much to do and so little time syndrome. But just don't go that road. Focus only on your strength. There are topics that you will always cover well, and there will always be something that may slip. It happens so again. Don't dwell on that. Focus on what you are good at first and then try to be later the rest. Most important thing in the last minute is to remember Amir Khan's character from Three Idiots and keep telling yourself, all is well, all is well. If you do so, there is no reason to not to do well in your IBPS clerk exam. All the best, get cracking. ये देने के बाद IBPS का रिजल्ट निकलता है. The result of the IBPS exam will do available in the official website, that is ibps.in. The candidate who appear in the IBPS can check their result by visiting the official website. The final qualifying candidate will be sent the joining letter from the respective banks, and that training will commence in about 2 months' time, the declaration. So at last, I want to say, there are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world. First, those who are afraid to try. And second, and those who are afraid you will succeed. Thank you and all the best. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे क्वेश्चन करता है. आई एम स्टिल लर्निंग. मैं बहुत अच्छा बैंक एक्सपर्ट हूं, मैं आज भी नहीं मानता. तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने नेटिंग किए हैं वो है कि मटेरियल कहाँ से मिलता है. मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं है कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन बैंक आप कहीं से भी ले लो और वो करो, क्योंकि इसके बाद कुछ आने वाला है नहीं. स्पेसिफिक यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी कोई बुक्स नहीं है जो पूरा आपको पेपर दे दे. सो यू हैव टू गो विथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट. बहुत सारी ऑनलाइन मॉक टेस्ट होती हैं, जैसे गूगल में आप टाइप कर लीजिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए. फिर एग्जाम कार्ड भी है महेंद्र एंड महेंद्र का, जस्ट लाइक डेबिट कार्ड, वो आप ले लीजिए. 120 रुपीज है उनका कार्ड का. वहां पे 15 मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं एक्सक्लूसिवली एज सच के आप IBPS में बैठे हैं. तो आप ट्राई कीजिए. ऐसा ट्राई करने का कारण यही है कि स्पीड बढ़ती है. मैंने आपको बताया कि स्पेंड 1 आवर. बहुत सारे क्लासेस भी हैं, बहुत सारे सिटी में बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, मगर कई बार मैंने देखा है कि वो क्लासेस 23,000, 25,000, 30,000 ऐसी फीस चार्ज कर रहे हैं. मैं ऐसा मान के सोचता हूँ कि क्लास में क्या होता है. क्लास में हम जाते हैं 2 घंटे, वी हैव टू कंपल्सरीली सिट देयर. वहां पे हम कंपल्सरी हमें बैठना पड़ता है. तो और 2 घंटे वहां पे गुजारना है. मैंने आपको बोला कि यू हैव टू स्पेंड 1 आवर अ डे स्टार्टिंग विथ योर SYBCom, SYBA, व्हाटएवर. सेकंड ईयर से आप स्टार्ट कीजिए. बाजार से 400-500 रुपए की कोई भी बुक ले लीजिए प्रीलिम की, फिर स्टार्ट कीजिए. मैंने बताया ऑनलाइन मॉक टेस्ट का बताया, लिबर्टी प्रकाशन है,
किरण पब्लिशर्स हैं बुक्स के लिए। मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मार्केटिंग भी नहीं कर रहा हूं। इफ यू आर आप पॉपुलर भी हैं, सूरत की बात कर रहा हूं, अगर आप कोई भी पब्लिशर से कंफर्टेबल हैं, यू गो विद दिस। हमारा गोल क्या है कि हमें एब्सॉर्ब करना है हमारी जॉब। लुसेंस कंप्यूटर आप देखिए कि मैंने यहाँ पे एक बुक आपको मैं दिखा रहा हूं। मैंने बताया कि स्टिल आई एम लर्निंग। मैं भी कोई टेक्नोक्रेट नहीं हूं। बैंकिंग हाईली वॉलेटाइल सेक्टर है। आफ्टर 1991 से ये सेक्टर बहुत ही हाईली वॉलेटाइल है। सो ईच एंड एवरी डे यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू। बेस्ट बुक पर कंप्यूटर, कवर ईच पार्ट। यहाँ पे जो बुक्स हैं, मैंने फिर भी बताया आपको कि ये कोई मार्केटिंग नहीं है मेरा। मुझे डिफिकल्टी है, मैंने आपको बताया कि डिस्पाइट ऑफ माय ब्राइट कैरियर इन एकेडमिक, मेरे पास जॉब नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास जॉब क्यों नहीं था, तो मेरे जो डायरेक्शन से एफर्ट्स के, वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल लाने का ही था। सिर्फ गोल्ड मेडल से कुछ नहीं होता लाइफ में, आपके पास बहुत सारे स्किल भी होना जरूरी है। तो ये आप कर लीजिए। यू स्पेंड हाफ एन आवर टू रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। और जो भी आपके पास बुक है, ऑनेस्टली 1 घंटा आप बैठिए घर पे। जो आप क्लास में बैठते हैं, दूसरे क्लास ज्वाइन करने के बाद एक फैशन बन गया है कि हमारे फ्रेंड जा रहे हैं, हम भी चलो चलते हैं। और एक सोनिका चौधरी का एक क्वेश्चन है, पीरियड फॉर डीबीएफ एग्जामिनेशन, डिप्लोमा इन बैंकिंग एग्जाम। इट इज वेरी इजी, टोटली ऑब्जेक्टिव होती है एग्जाम। 3 क्वेश्चन, 3 बुक्स होती है उनकी, जो मैकमिलन पब्लिश कर रहा है उनका बुक्स, तो वो आप ले लीजिए। उनका कोचिंग भी होता है सूरत में। मैं भी कोचिंग करवाता हूं, मगर मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरे कोचिंग में आओ। यू ट्राई एट योर लेवल। ये 3 बुक हैं, आप ले लीजिए। जो प्रैक्टिकल बैंकिंग का बुक्स है, एक लॉ का एक बुक है, 12th का अकाउंटिंग है जो बैंक रिकंसिलिएशन हम करते थे, और ऑब्जेक्टिव है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है डीबीएफ में, मगर लाना आपको जरूरी है 50%। और हर संडे को ये एग्जाम होता है, सालाना 2 बार होती है, एवरी 6 मंथ। यानी जून का एग्जाम मई में होता है और दिसंबर का होता है नवंबर में। अभी ये पेंडेमिक की वजह से ये साल में नहीं हो पा रहा है, मगर फिर जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। 3,500 जैसा उनका फीस है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। आपको मिलेगा 4 अटेम्प्ट। अगर 3 सब्जेक्ट आप 4 अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाए, देन अगेन यू हैव टू एनरोल। तो आपको देखना है, अगर पहले अटेम्प्ट में मैंने बताया कि 50% रिक्वायर है ऑन एन एवरेज, यानी 50-50-50, 150 में से आपका 75 होना जरूरी है। ईच सेक्शन में भी 50 होना जरूरी है, यानी जो 300 मार्क्स हैं उनका 150 होना जरूरी है। मगर पहले अटेम्प्ट में अगर आपने 45% लेके आए, यानी पहली बार आप बैठे हैं एग्जाम में, पहले पेपर में आपके 48 निकले, दूसरे पेपर में आपके 45 आए, और तीसरे पेपर में आपके 60 आ गए, तो ऑन एन आप देखिए कि अब उनका जो सम होता है वो 150 हो जाएगा, तो भी आपको पास डिक्लेयर करती है इंस्टीट्यूट। मगर यह सिर्फ और सिर्फ पहले अटेम्प्ट के लिए ही है, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन अवेलेबल मैंने बताया कि जो रीजनिंग है, क्वांटिटिव है, न्यूमेरिकल है, इंग्लिश है, जो है आईबीपीएस के एग्जाम है, आरबीआई की एग्जाम है, एसबीआई की एग्जाम है, वो ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मगर डीबीएफ का ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, आपको आईआईबीएफ से एक वर्चुअल दिया जाएगा, वहां पे सिर्फ स्पेसिमेन आपको दिखेंगे, मगर यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। और यहाँ एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है डीबीएफ का, इट इज फॉर नॉन बैंकर्स। तो 12th पास से आप शुरू कर सकते हैं डीबीएफ, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो यू हैव टू डेकोरेट योर सीवी, ग्रेजुएशन, ट्रिपल सी, डीबीएफ। तो ये सब आप करेंगे तो आपका सीवी डेकोरेट रहेगा। अभी देखिए कि मेरा जो सीवी है वो 10 पेज का बनता है, मगर कब? I spent 32 years with this sector. 32 साल के बाद मेरा सीवी 10 पेज का होता है। तो आपका 1-1.5 पेज का तो बना लीजिए। टू स्टार्ट विथ, अपने आप अपना सीवी, आपका सीवी अच्छा रहता जाएगा। हम जब कॉलेज के लिए निकलते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं, आईने में झांकते हैं अपने आप को कि मैं अच्छा दिखता हूं कि नहीं, झांकते हैं कि नहीं। तो ये भी आपको सोचना है कि अगर मेरा जो कैरियर है वो बहुत अच्छा रहेगा तो पीपल इंप्रेस हो जाएंगे आपसे। अगर आप, एक दूसरा भी सवाल है, अगर आपने एमकॉम किया है, मैं भी एमकॉम हूं, मेरे पास 18 एजुकेशनल डिग्री है। एमकॉम अगर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन। एमबीए फाइनेंस है, मैं भी एमबीए फाइनेंस हूं, बैंकिंग एमबीए बैंकिंग भी हूं, ये सब मैंने किया है। मगर फोकस अब अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना है, पहले पब्लिक सेक्टर बैंक में 12th पास को भी लिया जाता था। नाउ आईबीपीएस नाउअडेज रेज देयर स्टैंडर्ड फ्रॉम 12th टू ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएट अगर आप हो जाते हैं, मगर अच्छे तरीके से आप ग्रेजुएट कर लीजिए, नहीं तो डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन योर मोबाइल। मोबाइल जरूरी है, नहीं जरूरी ऐसा नहीं कहता, मगर नॉट कॉस्ट ऑफ आवर फ्यूचर। एक अगर आप अपने आप को कहीं पे एब्सॉर्ब कर लेते हैं, फिर देखिए लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल टू लिव। अगर आपके पास जॉब अच्छी है, आपके सभी फ्रेंड हो जाएंगे, सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे, अच्छा सैलरी है, अच्छा घर बना पाएंगे, अच्छे सहूलियत आपको मिल सकती है, और आपको अच्छा लगेगा, नेचुरली अच्छा लगेगा आपको। हम क्यों दुखी हैं? हमारे पास नहीं है कुछ। और हम क्यों दुखी हैं? दूसरा बंदा एब्सॉर्ब हो गया है बैंक में और हम रह गए हैं। इसीलिए टू स्टार्ट विद हमें दूसरे का नहीं देखना है, अपने आप में झांकिए कि हम क्या है। यू आर द बेस्ट जज फॉर योरसेल्फ। क्या है वो आप देख लीजिए। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है तो बता दीजिए। जो मैंने नेटिंग किया, डीबीएफ का जो फीस मैंने आपको बताया 3,500 का फीस होता है 1 टाइम का। आपको मिलेगा 4 अटेम्प्ट। आपने अगर 50 मार्क्स लाए और 2 पेपर में आप फेल हो गए, तो यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट ओनली। ये 4 अटेम्प्ट में आपने 3 पेपर नहीं क्लियर किए, यानी आपके 4 अटेम्प्ट खत्म हो गए, आपके 2 पेपर क्लियर हो गए, 1 बाकी रह गया। तो यहाँ पे आपको भूल जाना है, यू हैव टू अगेन री एनरोल। आरबीआई की जो होती है, सेकंड ईयर से आपको जो करना है वो मैंने आपको बताया है। आप डीबीएफ में एनरोल कीजिए। वनिता विश्राम जिसने आज का जो वेबिनार रखा है, वो मैडम है अभिलाषा अग्रवाल। तो बहुत ही विजनरी प्रिंसिपल मैंने देखी है, जो डीबीएफ का उनके लड़कियों के लिए, उनको बहुत ज्यादा कंसर्न है लड़कियों के बारे में। बहुत बार मैंने बात किया है कि सर बहुत सारी लड़कियां क्लासेस छोड़ देती हैं, कॉलेज छोड़ देती हैं, मैरिज कर लेती है, मगर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको थोड़ा अच्छा नहीं भी लगेगा जो मैं कहूंगा वो,
कि वी आर स्टिल लिविंग इन मेंस डोमिनेटेड सोसाइटी, जहां लड़की या कोई लेडी के लिए थोड़ी परवस्ता दिखती है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, अपने पैर पे खड़े हैं, कोई मोहताज नहीं है पैसे के, तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होती है। मेरी भी लड़की है जिसने मैं बैंकर हूं, मेरी वाइफ बैंकर है। मेरी लड़की भी देख रही थी कि पापा मुझे भी बैंक में जाना है। देन आई ड्रॉ दी वन लाइन, आपको ये करना है, आपको फर्स्ट क्लास लाना है, आपको डीबीएफ करना है, आपको ट्रिपल सी करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करना है। मगर यूथ कैसा होता है, फर्स्ट क्लास है, आ जाएगा, और वो फर्स्ट क्लास लेके आई। देन शी अपीयर्ड इन IBPS, वहां पे वो फेल हो गई और वो रोने लगी। क्यों? शी वॉज लिटरली क्राइंग। मैंने बताया कि बच्चा, मैंने बोला था कि IBPS का एग्जाम कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि जो आप पढ़ो और लिख के चले आओ। यहाँ पे आपको स्पीड में रहना है, एक्यूरेसी में रहना है, बहुत ही कंसंट्रेशन आपका चाहिए वहां पे। फिर दूसरी बार बैठी और शी बिकेम टॉपर। तो ये आपको मैं कहना चाहता हूं कि मेरे घर में ही आप देखिए कि मुझे भी जॉब नहीं मिला था, मेरी लड़की फेल हो गई थी, मगर नाउ वी आर ऑल सेटल, वी आर डीलिंग विद बैंकिंग सेक्टर ईच एंड एवरी डे। बहुत अच्छा लगता है। It is not compulsory. CCC course is not compulsory for IBPS. मैंने बताया कि CCC कोर्स आप कर लीजिए, क्योंकि जो भी जॉब होती है वहां पे वन ऑफ दी कंडीशन होती है कि आप कंप्यूटर जानते हैं क्या। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब है या कोई बैंक की जॉब है, आपको सूनर और लेटर CCC करना है। मगर CCC का जो कोर्स है, वनिता विश्राम वो भी चला रही है, सैटरडे संडे में आप कर सकते हैं, और वो गवर्नमेंट अप्रूव आप करिए तो एक सर्टिफिकेट और आपको मिलेगा। वो सर्टिफिकेट अवर डिग्री बेस्ड ऑन नॉलेज ऑलवेज। आपका गोल्ड मेडल आ गया तो कुछ मायने नहीं करेगा आपको, आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आप ये कर दीजिए कि अगर आपके पास डिग्री है, अच्छी डिग्री है, देन फोकस। मगर साथ साथ चलिए। आप एक तरफ आप ग्रेजुएट बन के आएंगे, आपके पास DBF का डिग्री भी होगा, आपके पास CCC भी होगा, आपके पास IBPS का प्रैक्टिसिंग टेस्ट पेपर आपने किए होंगे, तो यू विल बी डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। रजिस्ट्रेशन IBPS का होता है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है, दैट इज कॉल्ड IBPS.in। और दूसरा DBF का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी ऑनलाइन ही होता है, iibf.org.in। तो ये आपको करना है इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ एब्सॉर्ब्ड इन बैंकिंग सेक्टर। एनी अदर क्वेश्चन है तो बता दीजिए मुझे। जरूरी नहीं है, सोनिका चौधरी जी ने बताया कि आप 3rd ईयर में है, यू कैन स्टार्ट। मैंने ये बताया कि थोड़ा टाइम मिलता है SY से। अगर आप अभी 3rd ईयर में हैं, किसी ने पूछा है कि मैं MBA हूं, किसी ने पूछा मैं MCOM मैंने किया है, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन यही है जो मुझे पूछा गया था आफ्टर गेटिंग सेंटर फर्स्ट इन BCom, आपने MCOM क्यों किया भाई? मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने जवाब दे दिया था लेट प्रिंसिपल मिस्टर दालिया को कि मैंने क्लियर किया सर BCom, इसलिए अभी मैं MCOM कर रहा हूँ। सो हम जो जा रहे हैं विदाउट गोल जा रहे हैं। गोल के साथ यू फिक्स, यू राइट डाउन इन योर रूम कि बाय द एंड ऑफ 2022 बाय हुक और क्रूक मुझे जाना ही है अच्छी जॉब में। इसीलिए आज से प्रिपरेशन कीजिए। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, वहां पे आप बैठना चाहते हैं, बैठ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे।
मगर you have to create one, you have to remember one thing in your life. You have to create your own identity. आपके पास अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, लोग आपको जानते होंगे, जानने चाहिए। डीपीएफ कंपलसरी नहीं है और ये सालाना होता है, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप फॉरेन बैंक में जाना चाहते हैं, किसी ने पूछा है फॉरेन बैंक के लिए क्या, टू स्टार्ट विथ आवर बैंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, 3 तरह के क्रेडिट होते हैं, 3 तरह के डेबिट होते हैं। कैश होता है डेबिट, कैश होता है क्रेडिट, ट्रांसफर होता है क्रेडिट, ट्रांसफर होता है डेबिट, क्लियरिंग होता है क्रेडिट, क्लियरिंग होता है डेबिट। ये डेबिट और क्रेडिट हर एट द एंड ऑफ द डे रिकंसाइल हो जाना चाहिए, आपका डे खत्म हो गया। मगर ओवर एंड अबोव बैंकिंग में जो स्किल रिक्वायर हैं वो है एडवांसेस के लिए और दूसरा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप सीएफए हैं, सीपीए आपने किया है, सीए हैं आप, तो आपके चांसेस फॉरेन बैंक में ज्यादा है क्योंकि आपको नॉलेज है इन्वेस्टमेंट का, आपको नॉलेज होता है इंटरनेशनल बैंकिंग का। इंटरनेशनल बैंकिंग का एक सर्टिफिकेट है, जो एग्जाम मैंने पास किया है वो भी आईआईबीएफ ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल बैंकिंग का। तो डू दिस, आपको कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर भी मैं किसी सेक्टर के लिए बुरा नहीं बोलता, मेरा कोऑपरेटिव सेक्टर भी अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा है, पब्लिक सेक्टर भी अच्छा है, एसबीआई अच्छी है, आरबीआई भी अच्छी है, फॉरेन बैंक भी अच्छी ही है। कई कैंडिडेट मेरा मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ राइट डाउन माय मोबाइल नंबर 98980 88980 9890 मगर प्लीज टाइमिंग्स का ख्याल रखिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम स्टिल लर्निंग, मैं बहुत बड़ा बैंकर नहीं हूं। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे बनो आप, बैंकर अपने आप अच्छे बन जाते हैं। और कोई क्वेश्चन है? No, sir, you have answered most of the questions. Okay. And the questions which were asked on YouTube have also been answered. Those were regarding the training institutions, classes, and reference books only. So you've already answered them. Okay. So can we conclude it? Yes, Yes, sir. Sir, Now, thank you. The responses say the session was very informative. The students are really happy and satisfied on the basis of the knowledge you have given them. Now I request Dr. Krishna Desai for delivering the vote of thanks. Thank you, ma'am. Respected and our most distinguished resource person for today, Dr. Jatin Nayak, sir, Honorable Principal Dr. Abhilasha Agarwal, ma'am, members of teaching fraternity, my dear students, and all the participants. I deem it great honor to propose a vote of thanks to all those who have been helpful to us in putting up this webinar. I, Dr. Krishna Desai, IQAC Coordinator of Vanita Vishram Women's College of Commerce, am very grateful to Dr. Jatin Nayak, sir, for being with us today and enlightening the participants about career prospects in banking sector. Your presentation was not only
Excellent. It was interesting as well, and very well said as the last words that you concluded with. It is very important to be a very good human being first, and everything else will take care of itself. At this point, I also express my sincere gratitude to Dr. Abhilasha Agarwal ma'am for being supportive in organizing this webinar. I would also like to thank Ms. Nanda Bothra and all the committee members of the Career Guidance Cell for coming up with the idea of organizing this webinar. At this juncture, I extend my gratefulness to our technical team, Ms. Preena Desai and Ms. Bhumi Desai. It would be unfair on my part if I don't mention and appreciate the support of our management, teaching, as well as non-teaching staff, and everybody who has directly or indirectly helped us in contributed in making this webinar possible today. Finally, I thank all the participants for being with us today. Thank you one and all. Stay happy, stay healthy, and take care. It was wonderful to have you all. Thank you all. Thank you. Thank you, Krishna. Books, reference books के लिए एक और question निकला था, which my daughter used in 2016 and 17. Will share in comments. Yes. So it is up to you. मैंने बोला है कि मैं कोई मार्केटिंग में नहीं जाना चाहता. अगर आपको जो अच्छी लगती है बुक वो आप ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू.